After independence in 1947, we barely have enough food to eat. Spending on experience or luxury was a thing so far-fetched that it seems like a dream. Up until 80s, buying wasn't a choice. It was a privilege. As India's GDP grew, so does the consumer spending. It went from 2.7 lakh crores in 1960 to 190 lakhs crores, and luxury goods and services accounts for 1/4 of it. Now people want to spend on luxury items, expensive phone and experiences. हम सब ने ये वीडियो देख रखी है जहाँ एक लड़का अपनी माँ से डिमांड कर रहा है एक आईफोन की, और उसकी माँ करती क्या है, वो एक मंदिर के बाहर फूल बेचती है. It's not a problem when you have enough savings and disposable income to buy things that you don't need. I am recording this shit on iPhone. प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ऐसी चीजें खरीदते हो तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, और तुम्हें ये भी पता है तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है इसको खरीदने के लिए, बट यू बाय इट एनीवे. It's not your fault entirely too that you have this urge to buy unnecessary products that you don't need. There are two main factors or culprit that make us spend more than we should. We humans are just more social and intelligent version of apes. We need society to function and status to be top of that society. A Norwegian economist said, people care so much about their social status because it serves as a signal of their ability that are not immediate and observable. अगर तुम्हें किसी को एसेस करना है तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें उसे जानना पड़ेगा, बट उसमें बहुत टाइम खराब होगा. बट द शॉर्टकट इज टू ऑब्जर्व देम वंस. वी नोटिस व्हाट दे वेयरिंग, हाउ दे बिहेव, हाउ दे टॉक एंड व्हाट ब्रांड दे यूज. इसके बाद तुम्हें बिना उसे जाने तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इसका सोशल स्टेटस क्या है. दिस इज व्हाई वी बाय एक्सपेंसिव नाइकी शूज बिकॉज इट इज वंस worn by a celebrity, even though good quality boots will look good on you. This is called the halo effect. क्योंकि iPhone एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हम उसको परसीव करते हैं वेल्थ सक्सेस के साथ. We as human put social status on top of our necessities from our inception, not now. Even in Indus Valley civilization, जो higher status के लोग रहते थे वो different type की jewelry पहनते थे to distinguish themselves. But in this era of social media, status is communicated through videos and photos. इसके कारण तुम्हारे फोटो की क्वालिटी, तुम क्या पहन रहे हो, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, this has become way too relevant. Because of this, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी डिजायर है, हम इस चीज को खरीदना चाहते हैं, हमें ये चीज की जरूरत है. But our desire is not ours. Society and these companies are influencing us to buying the thing that we really don't need, and even when we don't have enough money to afford it. In a book called Wanting, a French philosopher René Girard said, most of our desire aren't actually our own. Instead, we learn what to want by observing others. Human brain wired like this, that हमें वो चीज चाहिए रहती है जो दूसरे लोगों को चाहिए, not the thing that we really need. The car that everybody want, yes, I want that. The phone that everybody wants, yes, I want that too. This is called mimetic desires. When we see in our life that other people want something, वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है खरीदना. अगर विराट कोहली ने कोई फिटनेस बैंड पहन लिया, we think we need that band, I need to buy that. और ये कंपनी को पता है कि तुम्हारे डिजायर्स को उनके प्रॉफिट में कैसे बदलना है. तुम घर लौट रहे हो अपने काम से और सडनली you get a craving of a Domino's pizza. Feels like a random craving, right? Your idea, your choice, but it's not. For months, Domino's has quietly pushing its thought through your mind. Those ads about perfect way to relax, that casual mention on your favorite podcast, they are not just the background noises. Domino's ने तुम्हारे मन में ऐसे thoughts घुसा दिए हैं जो रिलैक्सेशन को लिंक करते हैं डोमिनोज के साथ, कि अगर तुम्हें बहुत थकान हो रही है, अगर तुम काम के प्रेशर से रिलीफ पाना चाहते हो तो तुम्हें डोमिनोज पिज्जा ही मंगाना होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बाय द टाइम दैट क्रेविंग हिट्स, इट्स नॉट योर चॉइस एनीमोर. फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक आईफोन्स, इवन व्हेन समवन डोंट हैव इनफ मींस टू परचेज दैट फोन, ई कॉमर्स कंपनीज तुम्हें लालच देती है EMIs का, लोन्स का, डिस्काउंटेड सेल्स, but it pushes you towards to making that impulsive decision. तुम हर साल देखते हो बिग बिलियन डेज को, और उस कितना ढिंडोरा पिटता है उसमें आईफोन्स का, जहां तुम्हें वो बताते हैं कि आईफोन दैट कॉस्ट मोर देन $1 lakh इज नाउ जस्ट अवेलेबल एट 70K, और 70,000 भी तुम्हारे बजट में नहीं है, बट ये तो डिस्काउंट में है, अब तो मुझे खरीदना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई वी सी ऑन Amazon कि अब जो फोन 80,000 का है, इट इज नॉट लिस्टेड एज 80,000 बट इट इज लिस्टेड एट 13,000 into 6. तुम ये सोचोगे कि 80,000 जोड़ने के लिए मुझे महीनों लग जाएंगे, बस 13,000 में मुझे आईफोन मिल जाएगा अभी. बिकॉज ऑफ दिस यू विल बाय आईफोन ऑन EMI एंड गेट अ इंस्टेंट डोपामिन हिट. डूड, नथिंग इज फ्री. नो कॉस्ट EMIs हैव प्रोसेसिंग फीस. इट विल चार्ज यू GST ऑन टॉप ऑफ इट. तुम ये सोचो कि 70% आईफोन्स जो अभी सर्कुलेशन में है इंडिया में, दैट आर बॉट ऑन EMI. आई सेव्ड for months to buy this phone on a big billion day sale. और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, EMI पे बाय किया है,
let me make this very fucking clear. If you are buying something on EMI, that simply means you can't afford it. और अगर वो तुम्हें पैसे वापस बना के नहीं दे रहा है और वो तुम्हें एबल नहीं कर रहा है, तुम्हें स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है आगे फ्यूचर में पैसे बनाने के लिए, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी, बिकॉज यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ फॉर योर प्लेजर. यू आर गेटिंग दिस ग्रेटिफिकेशन बाय पुटिंग मोर बर्डन ऑन योर फ्यूचर सेल्फ. मैं ये नहीं बोल रहा EMI का यूज करना, क्रेडिट कार्ड का यूज करना बहुत बुरी बात है. मैंने अपने फैमिली के लिए अभी फ्रिज EMI पे लिया है. देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे पहले ये क्वेश्चन करो अपने से कि जो तुम बाय कर रहे हो क्या तुम उसे सच में अफोर्ड कर सकते हो? अभी तुम्हारे पास उसके लिए पैसे हैं या नहीं? और अगर तुम उसको EMI पे भी ले रहे हो, क्या तुम हर महीने उतनी EMI देना अफोर्ड कर सकते हो विदाउट गेटिंग दैट EMI इन अ वे ऑफ योर नॉर्मल एक्सपेंसेस इन द मंथ? एंड सेकंड, वेदर द थिंग दैट यू आर गोइंग टू परचेज इज अ डिजायर ऑफ योर और योर जेन्युइन नेसेसिटी. एंड इन डिजायर टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजायर. वन इज अ थिक desire and second one is a thin desire. Thick desire are meaningful, that gives our life purpose and long term satisfaction. जैसे तुम्हें iPhone 16 इसलिए खरीदना है because you want to become a photographer. That's a thick desire because this desire is connected to your personal growth, not social validation. Thin desire is when you want to buy an iPhone because you want to take mirror selfies with it with a Apple logo. Thin desire is not a problem. I also buy things that I don't really need. तुम thin desires पर ऐसे पैसे खर्च करते हो जो तुम्हारे पास सच में है ही नहीं. तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से पैसे चुरा रहे हो, तुम आप उसको बर्बाद कर रहे हो. बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू परचेज. स्टॉप रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ. आईफोन से याद आया, अगर तुम बहुत टाइम अपना फोन पर बिताते हो, देन चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट. स्टॉप बाइंग स्टूपिड शिट एंड गेट टू वर्क.